So continuing with the environment and biodiversity current affairs, today we'll be starting with the same document that we were continuing with before, page number 71. Drought in Europe is the first topic today. अभी यूरोपियन हीट जो है वो बहुत न्यूज में रहा, सब जगह ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है अब देखने को मिल रहा है 2022 में, प्रत्यक्ष प्रमाण इसको लेके जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने क्या क्या कवरेज किया, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। प्रीलिम्स के एंगल से यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट्स निकलेंगे, वो आपने प्लीज नोट डाउन भी कर लेने साइड में, कुछ चीजें देखने वाली हैं। देखिए, सो यूरोप्स अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव एक्सप्लेन्ड इन मैप्स एंड चार्ट्स। सो दिस वाज द सिचुएशन इन यूरोप, जो यहाँ पे आपको पर्पल या डार्क पर्पल वायलेट एरियाज दिख रहे हैं। सो दीज रीजन्स वर हैविंग एक्सट्रीम डेंजर ड्यू टू हीट and forest fires and all these kind of extreme events were expected there. Okay, so this entire area, अब आपको अगर ध्यान हो तो ये टेम्परेट जोन में आता है, लेकिन टेम्परेट जोन में भी इस तरह की हीटिंग अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, सो it's a plume of warm air from Europe which is both very warm and very dry. इस तरह के comments आए। In a warmer world, these plumes of air will simply be warmer. The sea surface temperature is warmer, the land is warmer, and so the anomalies you get become proportionately warmer. So one thing is leading to the other, but what are the various factors that are leading to this particular heat wave in Europe currently? इस तरह का क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है। तो पहला तो है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हमने पढ़ा था कि हाई ऑल्टीट्यूड एयर स्ट्रीम है, तो इसमें क्या हो रहा है? So single jet stream linked to heat extremes over the Mediterranean, weak winds, anomalously warm surface temperatures, and this lead to single high altitude air current. Okay, double jet streams के अंदर क्या होता है? So double jet linked to heat extremes over the Western Europe and Baltic. The frequency of heat waves increasing in Europe due to jet stream splitting in 2 for longer periods. So इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। So it's not just at the ground level where the searing or very high temperatures are being felt. Temperatures at the mid level, that means 1 to 2 kilometers in altitude in Europe, are also at a record high. This doesn't surprise given it represents a straightforward meteorological correspondence. When the air mass moves, हमने पढ़ा है warm और cold दोनों के बारे में, it moves across the whole depth or what we call the troposphere, और troposphere की लिमिट हमें मालूम है 8 किलोमीटर तक भी जाती है। The bit of the atmosphere where the weather happens, which is about 10 kilometer deep. If you have very warm temperatures on the ground, you are going to have very warm temperatures above too. So पूरे का पूरा air mass जो यूरोप के ऊपर है वही heated है। ठीक है, locations in Europe approaching or surpassing unofficial daily temperature records. तो इस तरह की जो जितनी ज्यादा इंटीरियर की तरफ लोकेशंस हैं उतनी ज्यादा एक्सट्रीम्स हैं टेम्परेचर में, क्योंकि ओशन का एक मिटिगेटिंग इफेक्ट तो होता ही है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, जो ओशन के पास है उधर कम थ्रेट है, वेरी लो डेंजर और लो डेंजर। जितना ज्यादा वो इंटीरियर की तरफ चलते जा रहा है उतना ज्यादा ट्रबलिंग है, because यहाँ पे winds जो हैं they go in this direction, westerlies, no, west to east. Okay, now let me take you to your document, and that will be much more clarifying with respect to the heating situation that we are experiencing in Europe. Here it is. So after record-breaking summer heat, 2022 may be the worst drought year in Europe in 500 years. Large rivers have been reduced to shallow streams, hitting power generation. China and US too are facing drought situations. So how bad is the drought situation in Europe? Let's see. तो 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है ड्राउट ने इस बार। The European summer was the driest in last 1540. Was this dry in 1540? So year 1540. Okay. When a year-long drought killed tens of thousands of people. However, earlier European droughts such as those in 2003, 10, 18 too were compared to the 1540 event. तो ये 1540 इवेंट अपने आप में एक हिस्ट्री है। Then some of the Europe's biggest rivers, Rhine, Po, Loire, and Danube,
which are usually formidable waterways, are unable to support even mid-sized boats. मतलब अब उनमें इतना पानी का फ्लो नहीं है. अब ध्यान रहे, ये यूरोपियन रिवर्स क्योंकि न्यूज में है, इनकी मैप में लोकेशन आपने पढ़नी है. जैसे ही क्लास खत्म होती है, वर्ल्ड मैप खोलना है, यूरोप में जाना है और उधर ये रिवर्स लोकेट करनी है. राइन, पो, लॉयर एंड डैन्यूब. ओके. देन as per the analytical reports by the Global Drought Observatory, an agency of the European Commission, about 64% of the continent's landmass was experiencing drought conditions. तो अगर ऐसी सिचुएशन हो 50% से ऊपर एरिया में ड्राउट सिचुएशन आ जाए तो हम फिर ओवरऑल ड्राउट डिक्लेयर करते हैं इंडिया में भी. 90% of geographical area in Switzerland and France, 83% in Germany, and 75% in Italy was facing an agricultural drought. मतलब फसलों के लिए पर्याप्त पानी ना होना. Okay. The situation is unlikely to improve substantially in the coming months. This is a situation which was happening in the summer months in Europe. Already, due to drought, there is a agricultural distress. Then comes the Ukraine-Russia crisis, and due to that, the major wheat exporters, that is Ukraine and Russia, wheat and rice दोनों ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूरोप में इधर से, तो वो भी पीछे हट गए. वो अपने अपने में मस्त है लड़ने में अभी. फिर ऐसी सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन आज देखने को मिल रहा है, वो भी इसी ड्राउट के कारण ही हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर. आज के न्यूज़पेपर के अंदर था कि ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएबल टू डील विद देयर फाइनेंशियल बिल्स. डे टू डे उनको मैनेज करने मुश्किल हो रहा है. एंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन. ओके. So causes. So droughts are a part of natural climate system and are not uncommon in Europe. The extraordinary dry spells have been the result of prolonged and significant deviation from normal weather patterns. कारण क्या है देखिए, it is the record breaking heat waves. 1, increased evaporation of surface water and soil moisture. 2, severity of current drought can also be attributed to an extent to the fact that it occurred so soon after 2018 drought. So जब एक के बाद एक कंटिन्यूटी में कुछ चलता है तो वैसे भी फर्क ज्यादा पड़ेगा. एग्रीकल्चर को पहली मार पड़ रही है वहां पे. नाउ व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द हीट वेव्स? ये स्टैटिक एस्पेक्ट है, तो आई हैव एडेड हियर. लेट्स डिस्कस इट अ लिटिल बिट. हीट वेव किसको बोलते हैं, कब डिक्लेयर की जाती है, उसको लेके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. ए हीट वेव इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से डेफिनेशन. So it is a period of abnormally high temperature, typically occurring between the March and June. This is the summer months, and in some cases even extending till July. According to IMD, a heat wave is declared, ये prelims में याद रखना है, when maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius for the plains and 30 degrees Celsius for the hilly region. तो hills में 30 डिग्री सेल्सियस, प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस. अभी इसको कैसे भी यूपीएससी में फैक्ट के तौर पे घुमाया जा सकता है. वो बोलेंगे द हीट वेव इज डिक्लेयर्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर बोथ प्लेन्स एंड हिल्स. ऐसे डाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके. तो वो एक ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है और ऐसा गलत होगा. 40 डिग्री और 30 डिग्री आपको याद रखना है. ठीक है. नाउ इसके इम्पैक्ट क्या है? एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन इज कंसर्न, Europe depends heavily on its rivers to move the cargo. So क्योंकि जब वाटरवेज के थ्रू कुछ भी जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है. तो उसी के हिसाब से अगर रोड पे जाना शुरू करेगा तो कॉस्टिंग 10 टाइम्स आएगी मिनिमम. With water level down to less than a meter in some stretches, most large ships have been rendered unusable. Then power. So ज्यादातर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है और इसकी वजह से भी ट्रबलिंग है. दूसरा, जो गैस के प्राइसेस हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हाई हैं. तो न्यूक्लियर पावर इतना ज्यादा है नहीं. लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर also affected the operation of nuclear power plants because उधर भी सबसे ज्यादा पानी चाहिए. Food security. So this has become a major concern because food is sharply more expensive in some countries and drinking water is being rationed. So agriculture has also been affected badly. Developed countries के इस टाइम पे जो मेजर कंसर्न है ना वो इन्फ्लेशन है. Food inflation being the most severe because of these kind of weather aspects there.
क्योंकि उन्होंने उस तरह से अडेप्ट भी नहीं किया, उनको जरूरत भी नहीं थी, इंपोर्ट कर लेते थे। अभी इंपोर्ट वाला भी काम गड़बड़ हो गया इस वजह से। What about the drought situation in US and China? So let's see. So as far as China is concerned, their worst in 60-year drought is going on. The longest river, Yangtze, which caters to about 1/3 of the Chinese population, is seeing water levels drop to record low. Two of the country's biggest freshwater lakes, that is Poyang and Dongting. अब मैप पे इनको प्लीज देखना है, जितनी रिवर्स, जितने लेक्स न्यूज में आते जा रहे हैं, प्लीज ओपन द मैप और इनको एक बार देखो, वर्ल्ड मैप वाली एटलस वाली किताब खोल के, ठीक है। सो दे हैव रीच्ड देयर लोएस्ट लेवल सिंस 1951। देन जब ये रिवर्स न्यूज में है ना, तो आपको शायद बस इतना से क्वेश्चन डाले वो मैच द फॉलोइंग में, एक तरफ लिख दें यांगसी, दूसरी तरफ चाइना, एक तरफ लिख दें पो, दूसरी तरफ कंट्री यूरोप, इस तरह से। सो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं बड़े आराम से, लेक्स एंड देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिर बंदा सोचता है कि ये पर्टिकुलर लेक्स या रिवर्स क्यों पूछी जा रही हैं इतनी पुरानी। फिर वो बोलते हैं अच्छा एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन तो एनसीईआरटी में है ही, बट कितनी पढ़ेंगे ना, तो इसलिए जो अभी न्यूज में है इनका लोकेशनल फैक्टर याद रखना है आपने। This water scarcity is leading to the problems similar to those in Europe. जैसे कि एग्रीकल्चर में हर जगह पे थ्रेट आएगा, वैसे ही यूरोप में है। पावर शॉर्टेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। ओके, नाउ एज फार एज यूएसए इज कंसर्न, तो ओवर 40% ऑफ द एरिया इन यूएस टू इज अंडर ड्राउट। अब यूएस और चाइना के अंदर तो ड्राउट है, हीट वेव है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या चल रहा है? ऑन द अदर हैंड, फ्लडिंग। जैसे पाकिस्तान में फ्लडिंग हो रही है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में डाउन साउथ फ्लडिंग हो रही है। So how drought is declared in India? Now this is again from the prelims perspective very important. Mains में भी चाहिए, ठीक है? So in India there is no single legally accepted definition of drought. State government is the final authority when it comes to declaring a region as drought affected. Central government नहीं करेगी, state government करेगी. First step is to look at two mandatory indicators. First is rainfall deviation and dry spell. तो देखेंगे कि नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे कितना कम या ज्यादा बारिश हुई है, एक तो वो देखना होता है। दूसरा देखेंगे कि कितना कंटिन्यूड ड्राई स्पेल है, कितनी देर से बारिश नहीं हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द सेकंड स्टेप इज टू लुक एट 4 इम्पैक्ट इंडिकेटर्स जिनके ऊपर फर्क पड़ेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, वेजिटेशन इंडिसेस बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी। सो इन चारों के बाद अब क्या है, द स्टेट में कंसिडर एनी 3 और द 4 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट ऑफ ड्राउट, द इंटेंसिटी ऑफ क्लाइमेट एंड मेक अ जजमेंट. So if all the 3 indicators are in severe category, it amounts to a severe drought, otherwise a moderate drought, like this. The third step comes in after both the previous triggers have been set off. In fact, in that event, the state will conduct a sample survey for the ground to make a final determination. Once a drought is determined, the state government needs to issue a notification specifying the geographical extent. तो आमतौर पे district wise manner में आता है, ठीक है? Notification is valid for 6 months unless denotified earlier. क्योंकि 6 महीने के अंदर तो हम सोचते हैं कि बारिश हो ही जाएगी, like this, चाहे नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाए चाहे साउथ वेस्ट मानसून आ जाए, रिट्रीटिंग या नॉर्मल, ठीक है? सो ये ऑफिशियल प्रोसेस जो है ना, इसको अब प्रीलिम्स में अगर पूछना हुआ तो वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट इंडिकेटर्स ऑफ ड्राउट। तो एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, व्हाट आर द 2 मैंडेटरी इंडिकेटर्स टू डिक्लेयर अ ड्राउट इन इंडिया? सो रेनफॉल डिविएशन एंड ड्राई स्पेल। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। मेंस के लिए पूरा ही चाहिए, प्रोसेस पूछ सकते हैं आपके, हाउ इज ड्राउट डिक्लेयर्ड इन इंडिया। प्रीलिम्स में एक और क्वेश्चन ये बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग अ ड्राउट? तो उसमें वो आईएमडी, सेंट्रल सम बोर्ड, कोई ऐसा नाम ले लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, और लास्ट में शायद लिख दे नन ऑफ द अबव, तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम भी ना ले, इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। Bhitarkanika National Park. Now another one in the news. Why? Let's see.
So this has reached a saturation point in population of crocodile, which could lead to more human crocodile conflict. ज्यादा मगरमच्छ हो गए हैं, क्या कराया जाए? ठीक है, अब क्या है ना, इस पे जब एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि वन पर्टिकुलर नेशनल पार्क एंड फॉर व्हाट स्पीशीज इट इज फेमस, उसका फोकस एरिया क्या है, तो ऐसे ही ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भीतरकनिका नेशनल पार्क क्रोकोडाइल। ठीक है, फाइन। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया आफ्टर, सबसे बड़ा कहाँ पे है, कौन बताएगा? जो बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट्स में बता देना, बट एनी हाउ जो अभी बता रहे हैं वो बताइए, विच इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया? हेलो हेलो, सुंदरबंस, ओके, बट यू कैन से नियर बाय वेस्ट बंगाल, है ना, बांग्लादेश वो वाला एरिया में है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। So the national park is essentially the network of creeks and canals which are inundated with waters from the rivers Brahmani, Baitarani, Dhamra and Patsala. कई बार वो क्या बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं कि नेशनल पार्क गेस कीजिए और आपको 3-4 सिनेरियोज देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम, these 4 rivers flow through it, it is known for crocodile population, फिर नीचे ABCD 4 नेशनल पार्क्स का नाम देते, ऐसे भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये भी परेशानी का कारण बनता है कई बार, वो बोलते हैं फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर। ठीक है, सो इट इज सॉल्ट वाटर, क्योंकि देखिए ना, मैनग्रोव इकोसिस्टम है तो सॉल्ट वाटर ही है। द ग्रेहर मत्था बीच which forms the boundary of the sanctuary in the east is the largest colony of the olive ridley sea turtles. So second most important thing which is associated with Bhitarkanika National Park is olive ridley sea turtle. Now the other unique phenomena is the Bagha Ghana or the heronry near Surajpur Creek. So like I said, they can make certain statements and then ask you कि कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही। So ये सारे facts के बारे में याद रखना। Next, battery waste management rules 2022. Now we already have e-waste management rules. We already have hazardous material management rules. Now for specifically batteries, we are making another rules. Why? Because we are moving towards the e-vehicles, electric vehicles. So इस वजह से उनकी जो बैटरीज अब डिस्पोज होनी है आगे जाके या जो बननी है, उन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ रूल्स टाइमली बने तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, so recently the Ministry of Environment has notified these rules. पहले तो यही याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री है, क्यों? For the sound management of waste batteries, the rule will replace the 2001 earlier rules. तो बहुत देर से अपडेट नहीं हुए हैं। बाकी तो आपने देखा जैसे 2008 में, 2011 में कंपैरेटिवली बाकी रूल्स को अपडेट कर दिया गया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सो ऑन, बट इनको काफी देर हो गई। So coverage all types of batteries, including electric vehicle batteries, portable batteries, automotive, industrial, किसी भी तरह की बैटरी हो, सबके ऊपर लागू होगा, चाहे आपकी फोन की। Extended producer responsibility, ये इसमें डाला गया है। The rules function based on the concept of EPR, where the producer of the batteries are responsible for collection, recycling, refurbishment of the batteries, and use the recovered material from the waste in the new batteries. Okay, so that is the extended producer responsibility. Now, they promote the setting up of new industries and entrepreneurship in collection and recycling and refurbishment of waste batteries. New business opportunities will be generated due to this, obviously. And this will bring in new technology and investment in terms of recycling and refurbishment industry. क्योंकि हमें सर्कुलर इकोनॉमी के चलते ये सब चीजें चाहिए। इससे जो डेवलपमेंट है वो ग्रीन भी होगा और चलेगा भी, कुछ नए तरीके भी निकलेंगे ग्रोथ के लिए। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल, क्योंकि एज इट इज बहुत ज्यादा बैटरीज के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास, इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, so reporting, auditing and committee for monitoring implementation of rules and taking measures required for removal of difficulties. बड़ा ही आसान है, हर साल हमें मालूम है क्योंकि हर बैटरी के ऊपर एक नंबर रहता है, गारंटी होती है उसकी। अब हर कंपनी ने कितनी बैटरीज बेची और
उसकी 3 साल 4 साल की लाइफ स्पैन है, उसके बाद उन्होंने कितनी रीप्रोसेस की या रिसाइकिल की, उसका डेटा बड़े आराम से हर कंपनी दे सकती है और उनसे लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एसेंशियली जब लेट्स से आपको अपनी कार की बैटरी चेंज करानी है तो आप पुरानी बैटरी देके नहीं लेते, ये तरीका है। तो पुरानी बैटरीज जो फिर जाती हैं उनका वो किस तरह से रिसाइकिल करेंगे, वो प्रोसेस को फॉर्मलाइज करने की बात है। अभी वो प्रोसेस इनफॉर्मली चल रहा है, कभी कंपनी वाले ले गए, कभी कोई कबाड़ी वाला ले गया, कभी कुछ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अभी वो फॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर सिस्टम में बात आएगी, एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास डेटा होगा किस तरह से हैंडल हो रहा है। Principle of polluter pays. So environmental compensation will be imposed for non-fulfillment of EPR targets, responsibilities and obligation. And environmental compensation fund will be created. So जो भी यहाँ से compensation लेंगे, फाइन लगाएंगे बेसिकली, उसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर कलेक्शन एंड रिफर्बिशिंग और रिसाइकलिंग ऑफ अनकलेक्टेड और नॉन रिसाइकल्ड वेस्ट बैटरीज। कई बार लोग फेंक देते हैं, स्पेशली द मोबाइल बैटरीज आर द कल्प्रिट्स है। जो बड़ी बैटरीज हैं वो तो नहीं फेंकते लोग, लेकिन मोबाइल फोन की बैटरी जरूर फेंक देते हैं। जो ट्रिपल ए अल्कलाइन बैटरीज या सेल्स छोटे छोटे, वो भी फेंक देते हैं लोग, उनमें भी कुछ नहीं करते। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या था 2009 के अंदर, देखिए, इन ए ड्राई सेल बैटरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इट इज अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये दो इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं। नेट जीरो इमिशन टारगेट, ये हम पढ़ लिया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेट जीरो इमिशन टारगेट्स हैं। नेट जीरो का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो समझना है, प्रीलिम्स के हिसाब से अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, by getting India to net zero, India needs a massive $10.1 trillion investment from now on if India needs to achieve net zero emission target by 2070. अभी सोच के देखो एक मिनट, इंडिया का इकोनॉमिक साइज, हमारा ड्रीम था कि $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, अभी पहुंचा नहीं है, 3.5 के आसपास। $10 ट्रिलियन की हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, स्टार्टिंग राइट नाउ, ओके, टू बी एबल टू अचीव दिस टारगेट। तो ये तो इकोनॉमिक साइज कहां तक चला जाएगा, और विद इन इंडिया तो इतनी इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज होने से रही, तो तुम सिर्फ एनवायरमेंट के ऊपर ही बात कर रहे हो तो कुछ कर ही नहीं रहे। So sometimes these report offshoot things by a huge amount. But now what happens in the UPSC with respect to these amounts? वहां पे अगर ऐसा फैक्ट डाला जाए कि इंडिया नीड्स अ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $10 ट्रिलियन टू बी एबल टू रीच इट्स नेट जीरो टारगेट बाय 2070, तो आप ये मानोगे ही नहीं कि आप भी इसी फैक्ट्स को दिमाग में घुमाओगे, यार इकोनॉमी का साइड 3-4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, $10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट, हाउ इज इट पॉसिबल? They are talking about this investment being happening in the next 50 years, not in 1 year. That's the fact that is missing from this statement. Okay. The investment required by India would be $13.5 trillion if the net zero emission is to be made by 2050. अगर जल्दी करना है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। NDCs क्या है हमारे? So India's nationally determined contribution targets set in 2015 are likely to be met early. तो हमने उसको तो रिवाइज कर लिया, ऊपर देख भी लिया। पीक इमिशंस हमारे 2030 तक ही हो जाएंगे, वैसे भी हमारे इमिशंस कम ही हैं। बेनिफिट्स क्या है? So this would increase the GDP by 4.7% by 2036 and create 15 million new jobs. जैसे हम देख रहे हैं recycling industry and everything. Suggestions: boost renewables and electrification. That's the main suggestion. What is this net zero target? It is basically carbon neutrality, which means, हाँ, इसका एक सीधा मतलब ये नहीं है कि कार्बन एमिशंस हमारे जीरो हो जाएंगे, पेपर में शायद इसको ट्विस्ट करके डालने की कोशिश करें। इसका मतलब है क्या? इट्स अ स्टेट इन विच कंट्रीज इमिशंस आर कंपोज्ड बाय और कॉम्पनसेटेड बाय अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, चाहे वो एफॉरेस्टेशन से हो, चाहे रिसाइकलिंग से हो, चाहे कार्बन ऑफसेटिंग से हो, कैसे भी हो। ठीक है, सो प्रेजेंटली मोर देन 70 कंट्रीज हैव प्रॉमिस्ड टू बिकम नेट जीरो बाय 2050। इंडिया ने 2070 का टारगेट दिया है COP 26 में। लेकिन ये टारगेट ना, इनके बारे में जो क्रिटिकल एस्पेक्ट आ रहा था वो ये आ रहा IPCC की रिपोर्ट्स के अंदर कि भाई हम लॉन्ग टर्म की बात तो कर रहे हैं सारे कि हम नेट जीरो करेंगे, नेट जीरो करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात कोई नहीं कर रहा कि अभी क्या करेंगे।
50 साल बाद जो होगा ठीक है, दैट्स फाइन, एग्रीएबल। शॉर्ट टर्म में आप लोग आज क्या कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेगा 50 साल बाद क्या होना है। हमारे पास अगले 50 साल हैं भी या नहीं हमें क्या मालूम, with respect to what is happening with the environment right now, the scale of destruction that is being caused by floods, droughts, heat waves, and so on. The next 50 years may be even more troubling for the lot of people, especially in developing countries. So we need to be taking care of the present also. So what steps have been taken? India इसको लेके क्या कर रहा है? पहला, renewable energy targets थोड़े से अप प्राइम कर दिए हमने कि जो हमारी प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 175 गीगावाट, so we will go up to 450 gigawatt by 2030 in terms of renewable energy. Okay, then India has also announced the target 50% installed power generation capacity from non-fossil energy sources by 2030. ये हमने पढ़ लिया था. Then goals at NDC already you know, so ये static में ही आ गया, अब तो इसको आप यहाँ से दोबारा पढ़ सकते हो. स्कीम्स को लेके सोलर एनर्जी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने वर्कआउट किया है, एंड इंडिया हैज अंडरटेकन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन इनिशिएटिव्स टिल डेट. देन क्रिएटिंग कार्बन सिंक्स, so we are trying to have more forests, we are trying to have a cooling action plan in place. Okay, so that will help. कूलिंग एक्शन प्लान में दो बेसिक चीजें, एक तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनकी एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर बात करनी है, जैसे 5 स्टार रेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दूसरा है कंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, तो ये एफॉरेस्टेशन के ऊपर ध्यान देगा. ये दो चीजें. थर्ड इज हाइड्रोजन एनर्जी. करंटली मोस्ट ऑफ द फोकस इन इंडिया in terms of new things or new initiatives is towards this hydrogen energy also. इसके ऊपर भी अब गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, तो इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्रे से ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ चला जाए. दैट मीन्स दी हाइड्रोजन विच इज जनरेटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, सो India's net zero targets and updated NDCs are certainly aspirational, keeping in mind the developmental needs during the post-COVID recovery. So that's that. Now, क्वेश्चन क्या आया 2016 के अंदर? देखिए, the INDCs अब 2015 में डिक्लेयर किया था, तो 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, sometimes seen in news in the context of, तो INDC का मतलब क्या है? बस इतना सा सिंपल क्वेश्चन आया था. So it is plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change. बस सिंपल सा था. बाकी क्या पढ़ोगे तो वैसी हंसी आएगी अब तो. Then मेंस के अंदर क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द 26th सेशन ऑफ सीओपी, और ये 2021 में आ रहा है. ठीक है, देन COP to the UN Framework Convention of Climate Change. What are the commitments made by India in this conference? So COP 26. अभी नेक्स्ट ईयर COP 27 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 2023 में. नेक्स्ट, न्यू एडिशन टू द रामसर साइट्स लिस्ट. अब रामसर कन्वेंशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन है, हमें मालूम है. इसमें 11 नए साइट्स जोड़े गए हैं, तो अभी प्रेजेंटली इंडिया में 75 ऐसे साइट्स आ जाएंगे जो रामसर कन्वेंशन के अधीन है. ठीक है, Tamil Nadu has the maximum number of Ramsar sites, presently 14, followed by UP. अब which new sites have been added? ये पढ़ने की क्या जरूरत है? अभी मैं सीधी सी बात बताता हूँ, 11 हैं, तो 11 आपको याद कैसे रखने हैं? क्या इनमें से बेसिक बात है, जो टेबल में इंफॉर्मेशन दिया ना, बस इसको 2 बार पढ़ लो. क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट इज, लाइक आई सेड, लेक लोकेशन, रिवर लोकेशन, ऐसा कुछ एक लोकेशनल बेस पे ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है. 1, ठीक है, जैसे तंपारा लेक, ओडिशा. अदरवाइज हम जब कभी एटलस उठा के देखते हैं ना, तब इन लेक्स के ऊपर ध्यान नहीं जाता. एनसीईआरटी में भी इन लेक्स का मेंशन शायद नहीं है. ठीक है, शायद क्या पक्का ही नहीं है तंपारा लेक. तो इस वजह से ये ट्रबलिंग हो जाते हैं जब फैक्ट्स पेपर में पूछे जाते हैं. और शायद क्वेश्चन बड़ा सिंपल से ऐसे ही हो, recent Tampara lake has been used in recent news for what reasons? तो क्या? क्योंकि रामसर कन्वेंशन के अंदर वो आ गए. ठीक है, आगे क्या जो एस्पेक्ट है ना, it is among the most prominent freshwater lakes, Ganjam district. The wetland is important habitat for vulnerable species such as
Cyprinus, Carpio, Common, Pocard and River Tern. इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये पढ़ लो एक बार और छोड़ दो, ज्यादा टेंशन इसकी लेनी है लोकेशनल एस्पेक्ट की, ठीक है। हीराकुद रिजर्वायर, अगर इनमें कुछ स्पेसिफिक फैक्ट हाईलाइट करें इनको, सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ऐसा कुछ हो, जैसे फॉर एग्जांपल हीराकुद रिजर्वायर है, इट इज इन ओडिशा एंड इट इज द लार्जेस्ट अर्थन डैम इन ओडिशा, स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1957। कौन सी रिवर के ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये फैक्ट्स अब एड ऑन फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट, Ansupa Lake, again in Odisha, largest freshwater lake in Odisha, situated in Banki subdivision. अभी subdivision और district याद रखने की जरूरत नहीं है, बस Odisha याद रखना. Largest freshwater lake in Odisha. Then it is an oxbow lake formed by Mahanadi River. ये इसके लिए important fact है. Bird species यहाँ पे कौन से हैं? टेंशन मत लो, एक बार पढ़ के छोड़ो, ठीक है। Fish species कौन से हैं? टेंशन नहीं लेनी, एक बार पढ़ के छोड़ना है. Then यशवंत सागर. So this is in MP. Now, this is one of the two important bird areas. अब important bird areas किसको बोलते हैं? जहाँ पे nesting grounds हो, जहाँ पे बार बार जो migratory species हैं उनके लिए nesting grounds हो, ठीक है। Now, it is considered to be the stronghold of vulnerable Saras crane in central India. So, ये वाला fact इसके लिए याद करना है. That's that, ठीक है। Next is Chitrangudi Bird Sanctuary, Tamil Nadu. So locally it is known as Chitrangudi Kannamoli. हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बर्ड सेंचुरी है, 1989 से है. Then ideal for winter migratory bird, notable water birds spotted in this area, spot-billed pelican, little legged, grey heron, etc. इनका एक बार नाम पढ़ के छोड़ना, टेंशन ही नहीं. इसके लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बर्ड सेंचुरी है वो इसके नाम के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। देन सुचिंद्रम थेरूर wetland complex, again in Tamil Nadu, location is important, okay. It is also an important bird area, just like that. अब ये टर्म बार बार आ रही है अगर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, तो स्टैटिक में जाके एक बार ये जरूर पढ़ना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया होता क्या है, कौन डिक्लेयर करता है, किस कारण से डिक्लेयर होता है, ठीक है। विल कम टू दैट लेटर. आमतौर पे इसके लिए एक इंटरनेशनली एग्रीड क्राइटेरिया है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के लिए. आई टेक यू टू दैट, गिव मी अ मोमेंट. देन वुडवर बर्ड सेंचुरी, दिस इज अगेन इन तमिलनाडु. It's a human-made irrigation tank and shelter for migratory species. Indian pond heron Ardiola grey second occurred in most of the survey tanks. Then large concentration of wintering waterfowl such as Eurasian, Vigian, Anis, Penelope. So all these are there. आपको again location, human-made and Indian pond heron ये याद रखना. Next. कांजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु, जस्ट द लोकेशन, दैट्स इट. और इसके बारे में कुछ खास नहीं चाहिए, ओके. अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, विल कम टू दैट. अगेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, इकट्ठा करेंगे, डोंट वरी. थाने क्रीक, महाराष्ट्र. नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी, ये याद रखना है. इट इज नोन फॉर फ्लैमिंगोस पर्टिकुलरली, ओके. देन Haigam Wetland Conservation Sanctuary, J&K. That's that. इसके बारे में और कुछ नहीं. Then Shalbug Wetland Conservation Reserve. So again J&K, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है. Extensive reed beds of Phragmite communis and Typha angusta and rich growth of Nymphia candida and stellata in open water. So अलग अलग तरह के species हैं. लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ कमिंग टू व्हाट इज दिस IBA, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये क्या होता है? लेट्स कम टू दैट. सिंपली एक विकिपीडिया का पेज खोल के ना उसकी 4 लाइनें ऊपर की पढ़ लेना सबसे अच्छा काम है प्रीलिम्स के पेपर के लिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन नॉलेज यहां से मिल जाएगी. लेट्स सी. सो दिस इज an area identified using internationally agreed set of criteria
as being globally important for the conservation of bird population. So this was developed by BirdLife International. ये क्या है? It is an NGO. बस इतना याद रखना, BirdLife International. Now, there are over 13,000 IBAs in the world. These sites are small enough to be entirely conserved and differ in character, habitat, ornithological importance, and surrounding important habitat. जिस तरह का भी है उससे थोड़ा सा अलग दिखता है. Okay, so this is BirdLife International जिसने क्राइटेरिया दिया, और IBAs essentially उस क्राइटेरिया के बेसिस पे बनते हैं. हमें वो क्राइटेरिया रट्टा मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए पहला क्राइटेरिया है ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज वहां पे होने चाहिए. दूसरा है इट शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज की उसी पर्टिकुलर एरिया में इंडेमिक है, वहीं ज्यादातर पाए जाते हैं. बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज एंड कॉन्ग्रीगेशंस, ये 4 बेसिक क्राइटेरिया है. दैट्स दैट IBA के लिए. कमिंग बैक टू आवर नोट्स. कोस्टल इकोसिस्टम. अभी ब्लू इकोनॉमी और ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो न्यूज में रहता है. इसी वजह से कोस्टल इकोसिस्टम्स के ऊपर भी बार बार गवर्नमेंट का ध्यान जाता है. ठीक है. तो रिसेंटली द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज टेबल्ड अ रिपोर्ट इन पार्लियामेंट on whether steps taken by the Union Environment Ministry to conserve India's coastal ecosystem have been successful. देखो CAG किन किन चीजों के ऊपर रिपोर्ट देता है. आमतौर पे हम बोलते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारा फाइनेंशियल ऑडिट है, लेकिन देखा जाए तो वो फाइनेंसेस किसी ना किसी स्कीम के तहत यूज हो रहे हैं. तो क्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अपने फाइनेंसेस को ठीक से यूटिलाइज कर पाया या नहीं, इस चीज के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन है. सो दिस लेटेस्ट रिपोर्ट कंटेन्स द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन ऑडिट of the conservation of coastal ecosystem from 2015 to 2020. So अब CAG इस तरह के क्यों को ऑडिट कर रहा है उसका मेंस में हमें चाहिए. ठीक है. So it has a constitutional mandate to investigate and report on publicly funded programs. तो कोई भी सरकारी खजाने से कुछ पैसा जा रहा है उसके ऊपर CAG ऑडिट कर सकता है. It conducted pre-audit studies and found that there were large-scale coastal regulation zone violations in coastal stretches. Full scale audit करने से पहले pre-audit studies करता है जिसमें ये चीजें पता चल जाती हैं कि हाँ इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या नहीं. Then coastal land up to 500 meter from the high tide line and a stage of 100 meter along the bank of creeks, lagoons, estuaries, backwaters, and rivers are subject to the tidal fluctuations and is called the coastal regulation zone. ये हमने statics के अंदर पढ़ा हुआ. Now the media reported incidents of illegal construction activity happening here. CRZ में हमने पढ़ा था 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग zones हैं, उसके अंदर आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो जोनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन प्रेजेंटली ये आ रहा था. So how is the center responsible for conserving the coastline? So under the Environmental Protection Act 1986 and the CRZ notification 2019, it has taken up the responsibility to conserve the coastal areas. Presently, we have 3 institutions which are responsible for its implementation. There is a National Coastal Zone Management Authority, state or UT level पे भी same इसका counterpart है, and there is a district level committee also. अभी इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलके इसको इम्प्लीमेंट करना और जो जोनिंग की गई है उस हिसाब से एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. ऑडिट में अब पता क्या चला, NCZMA as a permanent body. So Environment Ministry had not notified NCZMA as a permanent body and was being reconstituted every few years. In the absence of defined membership, it was functioning as an ad hoc body. एंड नेशनल लेवल पे सोचो कोई एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया है, अभी तक एड हॉक ही चल रही है 2015 से, किसी को टेंशन नहीं. रोल ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज. सो देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज नॉट बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेलिब्रेशन. कोई नया प्रोजेक्ट वहां पे आ रहा है तो क्या अप्रेजल कमिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं इसके अंदर, वो आ ही नहीं रहा. There were also instances of members of EAC being fewer than half of the total strength during deliberation. अब कभी आए भी तो आधे आए आधे नहीं आए. Seriousness नहीं है essentially. SCZMA not constituted. So at state level, where SCZMA
takes decision, the central auditor observed the instances where SCZMA granted clearance on its own without recommendation of project to relevant authorities. Further, SCZMA had recommended many projects without submission of mandatory documents. रिकमेंडेशन दे दी, ठीक है, कर दिया सैंक्शन, लेकिन कई जगह पे SCZMA है नहीं, और अगर है तो वो रिपोर्ट्स आगे फॉरवर्ड नहीं करते, उनकी कोई ऊपर से हायरार्की फॉलो ही नहीं हो रही. अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स डिस्पाइट इनएडिक्वेसीज. सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ना होते हुए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए. खैर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बाद में ले लो. What problems did the CAG find with the states? So Tamil Nadu didn't have a strategy in place to conserve the Gulf of Mannar Island. In Goa, there was no system monitoring the coral reef and no management plan to conserve the turtle nesting sites. In Gujarat, instruments procured to study the physiochemical parameters of soil and water in the internal area of the Gulf of Kutch were not used. नहीं पड़े हैं बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट, बंदे ही नहीं यूज करने के लिए. Sea patrolling in Griharmatha Sanctuary in Kendrapada, Odisha did not happen. So nothing is happening. अब आप ये देखिए, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम के अधीन फंडिंग कितनी हुई होगी? कैन यू टेक अ गेस? हेलो हेलो, how much money do you think that the government would have sanctioned for coastal zone management scheme? Take a guess, wild guess. इसका बजट कितना है? हाँ जी, एनीबडी? नहीं? अच्छा, अभी मैं सिंपल सा एक इसका कंपैरिजन देता हूँ. मनरेगा के अधीन हम 65-70 हजार करोड़ रुपया खर्च करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम छोटी सी भी होती है ना, तो 10,000-15,000 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ओके, और ऐसा चलते हुए भी अभी के लिए गवर्नमेंट हैज नॉट यूटिलाइज दिस मनी इन एनी पर्टिकुलर वे. और ये नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम कोई आज का नहीं चल रहा. ये एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट कब से इंडिया इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है ना. स्टिल देयर इज नथिंग टू बी टेकन आउट. चलिए आगे देखिए. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अभी आमतौर पे सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के पास होता क्या है? इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी को सबमिट करते हैं. पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर उसका सीरियस कुछ करना चाहे तो फिर स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर निर्धारित कर देती है, बना देती है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें रख देती है. फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को थोड़ी डांट मारी जाती है कि भाई तुमने ये ओमिशंस किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ इसको ठीक करो. सवाल जवाब होते हैं, एंड में खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता. तो दिस इज दी फेट ऑफ दिस रिपोर्ट. बट अल्टीमेटली हाँ, ये जरूर है, ऑपोजिशन के हाथ में एक चीज आ जाती है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए. देन आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. अभी यहाँ पे सीधी सी एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बनता है? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और फॉर व्हाट? ठीक है. So which suggested that the region is fast changing and that the best of the climate models may not be able to capture the rate of those changes and predict it accurately. That is Arctic amplification. Okay. So Arctic is heating 4 times faster than rest of the planet. तो जो वेदर और के चेंजेस हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, सबसे ज्यादा आर्कटिक में नजर आ रहे हैं. दैट्स आल्सो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. ओके. Warming is more concentrated in the Eurasian part, 7 times faster than the global average. Previous study उतना इसको alarmingly नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे जितना अब कर रहे हैं. ठीक है. The Arctic warming was twice the global rate prior to the beginning of 21st century. Now it is 4 times. Okay. Arctic surface temperature has increased by more than double the global average. अगर कहीं पे 1 degree हुआ है तो यहाँ 2 हुआ है. In May 2021, Arctic Monitoring and Assessment Program warned that the Arctic has warmed 3 times quicker than the planet. ये पिछले साल की बात है. अभी हम 2022 में बात कर रहे हैं, एक साल बाद, तो ये 4 times quicker पे पहुंच गए. ठीक है. So now polar amplification happens when changes in the Earth's atmosphere lead to a larger difference in temperature near North Pole and South Pole
than to the rest of the world. Basically, climate change की वजह से जो phenomena बाकी areas में हो रहा है, Arctics में या North या South Pole में ज़्यादा होता है. This phenomena is measured against the average temperature change of the planet. These changes have more pronounced at northern latitude. This is called as Arctic amplification. क्यों? क्योंकि उधर लैंडमास है, सदर्न एरियाज में उतना लैंडमास नहीं है अंटार्कटिक की तरफ, इसलिए आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है. अंटार्कटिक एम्प्लीफिकेशन उतना नहीं. It occurs when the atmosphere's net radiation balance is affected by an increase in greenhouse gases, ultimately global warming, climate change. What causes this? So the ice albedo feedback, lapse rate feedback, feedback matlab reinforcement, water vapor feedback, and ocean heat transportation are the primary causes. अब ये चार चीजें भी याद रखनी फिल्म्स के लिए. Sea ice and snow have high albedo, implying that they are capable of reflecting most of the solar radiation as opposed to water or land. As the sea ice melts, what will happen? It will lose the capability and ultimately not being able to reflect as much. So feedback कम हो जाएगा. So as the sea ice melts, the Arctic Ocean will be more capable of absorbing solar radiation, thereby driving the amplification. Lapse rate, or the rate at which the temperature drops with elevation, decreases with warming, obviously. Studies show that ice albedo feedback and lapse rate feedback are responsible for 40% and 50%, 15% of the amplification, respectively. तो ये दो मेजर हैं. तीसरा ओशन हीट ट्रांसपोर्ट तो है ही. वाटर वेपर फीडबैक भी है, क्योंकि जैसे जैसे स्नो मेल्ट करेगा वाटर वेपर्स भी क्रिएट होंगे, उससे भी वार्मिंग होगा. क्लाउड्स आर वन ऑफ द फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वार्मिंग. अभी सर्दियां आने वाली है ना, तो जब कभी क्लाउडी डे लगेगा तो आपको थोड़ा वार्मथ महसूस होगा, प्रोवाइडेड हवा ना चल रही हो. ठीक है. So what are the consequences of Arctic warming? First is thinning of Greenland ice sheet, rise in sea levels, definitely, because the Greenland ice sheet holds second largest amount of ice after Antarctica. Okay. If the sheet melts completely, the sea level would rise by 7 meters, capable of subsuming island countries and major coastal cities. Impact on biodiversity. So definitely marine species, etc., they will be in trouble. Warming is also increasing the incidence of rainfall, which is affecting availability and accessibility of lichens to the reindeer. The Arctic amplification is causing widespread starvation and death among the Arctic fauna. Then thawing or warming up of the permafrost. This releases carbon and methane, carbon dioxide and methane both. Moreover, long dormant bacteria and viruses that were trapped in the permafrost can again give rise to disease. For example, the anthrax outbreak in Siberia in 2016, which killed about 2 lakh reindeer. बंदे तो वहां पे कम है. Now, what is the impact on India? Arctic में amplification हो रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? So impact of changing Arctic have been found on the monsoon in the Indian subcontinent. The link between the two is growing in importance due to extreme weather events India is facing and heavy reliance on rainfall for water and food security. तो आर्कटिक के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं ना, इंडियन मॉनसून भी इफेक्ट होता है, क्योंकि देखिए मॉनसून सिस्टम तो ओवरऑल जो हमारी विंड सिस्टम्स है उसकी वजह से ही चल रहा है. अब ओवरऑल विंड सिस्टम्स ही क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यही यहाँ पे ट्रबल है. In 2021, a study was published which found that reduced sea ice in the Barents-Kara Sea region can lead to extreme rainfall events in the latter half of monsoon, that is in September-October. Flash flooding, cloud burst, इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी. According to WMO's report in 2021, sea level alongside Indian coast is rising faster than the global average rate. Okay. So ये सारे आर्कटिक के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रबलिंग है. अब हमारे यहाँ पे जो क्या हम कुछ आर्कटिक के अंदर कुछ स्टडी कर रहे हैं क्या? इंडिया के कोई पर्टिकुलर वहां पे स्टेशंस हैं? एनीबडी? हेलो, आर वी हैविंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च स्टेशंस इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक? फिल्म्स के अंदर ही आर्कटिक हाँ में है, अंटार्कटिक में भी है. लेट मी शो यू. और ये नाम अपने पास लिख लीजिए. तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे ही है.
research station in Arctic and Antarctic? Let's see. So India presently has 2 research stations in Antarctica, namely Maitri and Bharati. ठीक है. So इसके अलावा India's Arctic station Himadri is there. So मैत्री, भारती, हिमाद्री, ये याद रखना. हिमाद्री आर्कटिक में है, अंटार्कटिक के अंदर मैत्री और भारती. ओके, चलिए, लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स. Air quality and health in cities. So recently a report was released titled Air Quality and Health in Cities, which analyzed pollution and global health effects for more than 7,000 cities around the world. Let's see what's the situation. ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये मेंस में ज्यादा काम आएंगे आपके प्रीलिम्स की बजाय. अब किस बेसिस पे स्टडी किया गया है? 2 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, PM 2.5 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, अब जब भी कोई रिपोर्ट आए, पहले तो यही देखना भाई दिया किसने. So State of Global Air is a research and outreach initiative to provide reliable, meaningful information about the air quality around the world. It's a collaboration between US-based Health Effects Institute and Institute of Health Metrics and Evaluations Global Burden of Disease Project. तो प्रीलिम्स में ना इतने लंबे चौड़े नाम वाली और आमतौर पे एनजीओ टाइप या प्राइवेट टाइप ऑर्गेनाइजेशन वाली रिपोर्ट्स सीधे तौर पे क्वेश्चन में नहीं आती. इनको आप मेंस में ही यूटिलाइज ज्यादातर कर सकते हो. ठीक है, खैर, अब इन्होंने दिल्ली और कलकत्ता को बोला है कि दे आर द फर्स्ट एंड द सेकंड इन द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. तो दे आर इन द न्यूज फॉर बैड रीजंस. अब जब भी कभी दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आए, तब ये फैक्ट आप यूज कर सकते हो. ठीक है. Nitrogen dioxide. So no Indian city appeared on the list of top 10 or even top 20 in nitrogen dioxide levels. तो comparatively यहाँ पे थोड़ी सी बच गए हम. This list saw Shanghai at the top with an average annual exposure of 41 microgram per meter cube. Okay. Then death burden. Beijing has the largest disease burden associated with PM 2.5. Delhi came in 6th place. अब ये भी फैक्ट जो है आप यूज कर सकते हैं, दिल्ली और कलकत्ता. ओके, नाउ व्हाट आर दी WHO's न्यू एयर क्वालिटी गाइडलाइंस? इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है. जो 2021 में गाइडलाइंस आई थी, 2022 में उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया. ठीक है, तो हमने उस टाइम पे करंट अफेयर्स के अंदर किया था, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पड़े हुए, आपको मैंने लिंक सेंड किया था इसका. तो WHO's न्यू गाइडलाइंस रिकमेंड एयर क्वालिटी लेवल्स फॉर 6 पोल्यूटेंट्स. सो क्लासिकल पोल्यूटेंट्स जो हैं उनके ऊपर ये गाइडलाइन आई थी, और कितने कितने पैरामीटर हैं वो भी उसमें कवर किए थे हमने. अभी रिकमेंडेशंस क्या हैं एज पर रिपोर्ट? सजेशंस. सो लेवरेज द एक्सपैंडिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल बॉक्स, कलेक्ट एंड डिजिटाइज द हेल्थ रिकॉर्ड्स. तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या है, ये इसी चीज को स्टडी करता है, और उसी हिसाब से सजेशंस भी हैं. नेक्स्ट इज UN to sign treaty on ocean biological diversity. Let's see what is that. So it organized the intergovernmental conference to draft the first ever treaty on ocean biological diversity to conserve marine diversity on the high seas. So a series of conferences were set in motion in 2018 to draft the international legislation under the 1982 Convention on Law of Seas. तो इसके लिए कोशिश जारी है, अभी हुआ नहीं है लेकिन. ठीक है. Treaty seeks to address the conservation and sustainable use of marine biodiversity in the areas of the ocean which are beyond the limits of national maritime zone. So for this purpose, it will also address the marine genetic resources, including questions on benefit sharing, area-based management tools, environmental impact assessment, and transfer of marine technology. तो डेवलप्ड से डेवलपिंग को एक और एरिया में टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एस्पेक्ट मिलेगा. ठीक है, अभी के लिए आपने सिर्फ इसका नाम और UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज ये याद रखना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फंगस फॉर पायरीन रेमिडिएशन. लेट्स सी. CSIR, they have identified a fungus capable for removing toxic, recalcitrant and carcinogenic pyrene or polycyclic aromatic hydrocarbons from the environment. So the researchers used gas chromatographic mass spectrometer and serotome analysis for their study. टेंशन नहीं देनी अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है. ठीक है. What is pyrene?
So pyrene basically possesses 4 benzene rings, belongs to a highly toxic class of PAHs, that is polycyclic aromatic hydrocarbons, with carcinogenic and mutagenic properties. Mutagenic properties matlab it will cause DNA mutations and thereby disease. Now, ये मत सोच लिया करो mutation is positive, it is negative. वो जो X-Men दिखाते हैं ना, वो वाली सेंस में नहीं जाना. It gets lodged into the environmental matrices like soil, water, or atmosphere, resulting in widespread environmental pollution. Rapid pace of economic development and industrialization has also increased pH in the environment. So that's that. Otherwise, they occur naturally in crude oil, gasoline, इधर उधर. अब इनको क्योंकि हम बर्न आउट कर ही रहे हैं इतनी देर से, तो इस वजह से pH भी बढ़ रहे हैं. नो फंगस का नाम क्या है? व्हाइट रॉट फंगस, दैट इज Tramatis maxima IIPLC 32, which has the potential to cause microbial degradation of pyrene, basically bring it back to carbon, hydrogen, and all that. Okay, so growing on dead plants, this fungus causes pyrene degradation using special enzymes. So enzymatic characteristics से ही breakdown हो रहा है. ये 2-3 चीजें फैक्ट्स याद रखने हैं प्रीलिम्स के एंगल से. पहले तो पीएएच क्या होते हैं, ये एक सीधा क्वेश्चन बनता है. ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. दूसरा, आर दे ब्रोकन डाउन इन द नेचर बाय इटसेल्फ? नो. So there is a fungus that has been spotted now. We have discovered this. We have not created this. We discovered this. So this is a white rot fungus which is able to do it. UPSC में शायद इतना ही नाम यूज करें. White rot fungus has been in use for which of the following? Enzymatic degradation of PAH. ठीक है. Then this fungus acts to decrease the pollution level of the soil. आमतौर पे क्योंकि pH जो है वो हर जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, सॉइल में जो होगा उसको ये सेटल कर सकता है. Implication क्या है? It can cause microbial degradation, thereby improving soil quality. The fungus T. maxima may prove to be helpful in remediation of especially pyrene. Bioremediation बोलते हैं इसको, जैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले. So that's that. Again, bioremediation होता क्या है? It's a branch of biotechnology that employs use of living organisms like microbes, bacteria, etc. to decontaminate the affected areas. ठीक है, जैसे ऑयल स्पिल्स के लिए ये यूजफुल है, कोई ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूजफुल है, स्पेसिफिकली टारगेट करके. नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स टू द बायोडाइवर्सिटी बिल. सो प्रेजेंटली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी हैज एग्जामिन्ड द बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 and have accepted several amendments made by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. पुराना जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, ये चल रहा है, इसके अंदर हम चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं. इस एक्ट के अधीन 3-tier स्ट्रक्चर अभी वर्किंग है. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट लोकल लेवल. दैट मीन्स म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, सब जगह डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है. बिल के अधीन क्या होगा, ये मेंस का क्वेश्चन रहता है हमेशा. जब तक ये एक्ट के फॉर्म में नहीं आता और ये जनरल नॉलेज का पार्ट नहीं बन जाता, तब तक ये ज्यादातर मेंस में रहेगा. प्रीलिम्स में आने के इसके चांस तभी बनते हैं जब ये जनरल नॉलेज का पार्ट बन जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट इज बूस्टिंग इंडियन मेडिसिन. तो बायोडाइवर्सिटी बिल वांट्स टू गिव अ फिलिप टू द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फास्ट ट्रैकिंग इट्स ग्रोथ फॉर रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सो ऑन. अब मैंने बायोपायरेसी पहले डिस्कस किया हुआ है हमने जब एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, तो उसको भी रोकथाम हो जाएगी. और एसेंशियली हमारे पास जो आयुर्वेदिक या आयुष सिस्टम्स के अंदर जो मेडिसिन हैं, उनमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कौन सा है या किस बेसिस पे वो काम करती है, उस चीज की जब तक रजिस्ट्री नहीं क्रिएट होती, पेटेंटिंग नहीं होती, तब तक उसमें से जो इकोनॉमी भी क्रिएट नहीं हो पाएगी. ठीक है. So it looks to encourage farmers to increase cultivation of medicinal plants and achieve without compromising the objectives of UN Convention on Biological Diversity. Decriminalizing certain provisions. First off, these changes were brought in consonance with the India's ratification of the Nagoya Protocol, that is access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization in 2012. So नगोया प्रोटोकॉल के ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है दोबारा से न्यूज में. ठीक है. इट अलाउज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च इनटू बायोडाइवर्सिटी, पहले नहीं था. देन एग्जेम्प्टिंग आयुष प्रैक्टिशनर्स,
and people from accessing codified traditional knowledge, among others, from giving prior information to State Biodiversity Board for accessing biological resource from certain purposes. कुछ दवाइयां बताने के लिए जो बेचारे पहले लेके आ रहे थे जड़ी बूटी तोड़ के, उनको अभी एग्जेम्पशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं पहले जैसे ही आयुष प्रैक्टिशनर. Okay. Now, what are the major concerns raised against the proposed amendments? अब ये वाले specifically means के questions हैं. First is trade over conservation, threat to biopiracy, threat of biopiracy, then marginalizing biodiversity management committees, उनका कुछ खास रोल नहीं रह जाएगा. इसके बाद sidelining the local communities because they detect which plants are cultivated and which are wild. You know, तो ये अपने आप में डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है. This provision could allow large companies to evade requirement for prior approval or share benefits with the local community. Now, what are the recommendations made by the committee? अब जो troubles हैं उन्हीं के against recommendations हैं, ये ध्यान से पढ़िए. First is conserving biological resources. So, local communities should be empowered by clearly defining benefit claimers to be conservers of biological resources. Next, promoting indigenous medicine. That's required. Then promote sustainable use. ये ना हो कि कई बार commercialization के चक्कर में sustainability suffer करती है. Then, being a civil offense, the committee has further recommended that contravention with the Biological Diversity Act 2002, any offense should attract civil penalties with proportionate fine structure so that violators do not escape. तो civil offense तो है, लेकिन एक जबरदस्त fine भी होना चाहिए. FDI inflow. There is a need to attract foreign investment in the chain of biological resources क्योंकि उस investment के साथ research etc. सब आएगा. Without compromising national interest by defining foreign companies as per the Companies Act and by defining the protocol for utilization of biological resources from India, ताकि biopiracy ना हो. Exemption of Ayush practitioners. So committee clarified that Ayush practitioners who have been practicing indigenous medicine, including Indian system of medicine as a profession for sustenance and livelihood, are exempt from prior intimation. तो प्रॉपर जिनके पास डिग्री है उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, प्री सबमिट ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज. पहले तो प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है भाई, टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं? ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या? सो टाइगर रेंज कंट्रीज समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट व्लादिवोस्टॉक, रशिया, 5 सितंबर 2022. नहीं हुआ, आपको मालूम. In January 2022, the 4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation was held. India's National Tiger Conservation Authority has also decided to introduce guidelines for reintroduction of tigers that can used other tiger range countries. तो tiger range countries ही अपने आप में आपका क्वेश्चन है बस, essentially. So there are 13 tiger range countries, basically the places or countries where tigers are found. Substantial population है wild के अंदर. That is India, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russia, Thailand, Vietnam, China and Indonesia. बस ये याद रखनी, और उसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की. ठीक है. यहाँ पे basically it's like a brotherhood for tiger conservation. That's what we're trying to achieve. Now, what is the conservation status for tiger? Static part. So it, as per the Indian Wildlife Protection Act, it is in Schedule 1. IUCN puts it in the endangered species and CITES has put it in Appendix 1. Okay. Then बाकी की चीजें प्रोजेक्ट टाइगर के साथ रिलेटेड जो है वो यहाँ पे गिवन है. सो यू कैन हैव अ लुक कहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट टाइगर वाले इनिशिएटिव्स चल रहे हैं. और क्वेश्चन भी बड़ा सीधा सीधा सा आता है, दाम्पा टाइगर रिजर्व किधर है? तो मैप बेस्ड इसीलिए देने का यहाँ पे कोशिश किया गया है, यू नो, सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू डील विद. सो इट्स इन मिजोरम और गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सरामती पीक. कौन से इसमें से ठीक है, कौन से नहीं? सो ये गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में नहीं है. ये कहाँ पे? देखिए, हैव अ लुक. फर्स्ट स्पॉटर्स टू बी द विनर्स. चलिए आराम से बैठ के पढ़ना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following tiger reserve, which one has the largest area under critical tiger habitat? So that is Nagarjuna Sagar, Srisailam. Then the term M stripes, sometimes in seen in news, is in context of
मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ओके, सो ये क्वेश्चंस अब तक टाइगर रिजर्व पे अलग अलग तरह के आए हैं। आमतौर पे टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एक तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा, कभी भी उनका जब सेंसस होता है तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। फर्स्ट इज, हमने टाइगर सेंसस के बारे में पढ़ा था कि कैमरा ट्रैपिंग है, फिर उनके जो पॉज हैं उनके निशान अलग अलग होते हैं, फुट मार्क्स, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। नाउ लॉस ऑफ मैनग्रोव ओवर द कच्चल आइलैंड, तो नासा की स्टडी है, इट सेज दैट द मैनग्रोव ओवर कच्चल आइलैंड which is part of the Nicobar, Andaman Nicobar archipelago, that is going down. Why? क्या reasons हैं? So mangrove had the highest ratio of loss to gain among the 3 types of tidal wetlands it studied, and the area is, there's a net decrease of 37,000 square kilometers in the past 1999 से लेके 2019 तक. Now reasons for losses, first is a natural cause tsunami 2004, that is the major, उसमें submergence हुआ mangrove को ecosystem का. Then other factors are sea level rise, shoreline erosion, storms, altered sediment flows, subsidence, cyclones, all these things natural. Human induced, 27% of loss and gain were directly caused by human activity, majorly agriculture, water diversion, any kind of developmental activities, उसके लिए mangroves की utilization हो रही है. So it is very difficult that the earlier mangrove cover will ever come back. Obviously time लगेगा, तो जितना है उतना बचा लो, ठीक है. एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022. अभी इंडिया में ना एक चीज बहुत इशू है कि फ्री बिजली देने की कोशिश की जा रही है. अभी फ्री बिजली से जरूरी है किफायती बिजली, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, 24/7 सप्लाई, नॉन फ्लक्चुएशन, ओके, एंड एट अ रीजनेबल रेट इज बेटर देन a fluctuating voltage which is free of cost and not having a dependable supply. Yes or no? So everybody will pay, okay, 3 rupees, 4 rupees, 5 rupees per unit is okay. Everybody is able to pay and everybody is able to consume accordingly. Because as we know from NCRT also, we have studied that energy consumption is directly correlated with GDP growth. अभी उसको प्रमोट करने के लिए पॉजिटिव तरीका यही है कि उसको कुछ एक फेयर अमाउंट ऑफ चार्जेस होना चाहिए और उसी चार्जेस के बेसिस पे उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है. एनर्जी क्वालिटी इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज energy availability. Now what does this bill has to do? So इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 का चल रहा है उसको अब थोड़ा सा चेंज किया गया. Last time it was amended in 2010 to introduce changes such as incentivizing the use of clean energy by issuing carbon saving certificates. तो कार्बन क्रेडिट्स का सिस्टम आ गया था 2001 के अंदर. So what are the provisions of the Electricity Conservation Act 2001? This is for your consumption for static part. तो आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है. अभी proposed changes क्या हैं? पहला, share of renewable energy. So it defines a minimum share of renewable energy to be consumed by industrial units or any establishment. अलग अलग इंडस्ट्री के साइज को ये बता दिया गया कि भाई तुम इतना तो कम से कम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करोगे ही करोगे. देन may be done directly from a renewable source या indirectly from a power grid. Investing in clean energy. So it is incentivizing the carbon saving certificates just as before, considering additional incentives like carbon credits, then strengthening related institutions such as Bureau of Energy Efficiency, then promoting green hydrogen as an alternative to fossil fuels, increase the ambit of the conservation standards. So including larger residential buildings, they will also come as the major users for electricity. सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही नहीं देखेंगे क्योंकि आजकल सोसाइटीज का चलन हो गया तो वहां पे भी तो मेजर यूज हो रहा है. So what are the objectives of the proposed amendments? First is to reduce India's power consumption via fossil fuels and thereby minimize nation's carbon footprint. अगर इस स्टेटमेंट में से मैं वाया फॉसिल फ्यूल्स हटा दूं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. हम इंडिया की पावर कंजम्पशन कम नहीं करना चाहते, हम इंडिया की पावर कंजम्पशन बेस्ड अपॉन फॉसिल फ्यूल कम करना चाहते हैं. ओके, बी वेरी केयरफुल. To develop India's carbon market and boost the adoption of clean technology to meet nationally determined contribution, ये basic objective हर जगह सेम ही रहेंगे. Then
What are the India's climate change commitments? Just a repetition of static. So if you wish to read, you can read again. Then Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Like I said, अब इसमें शेड्यूल्स में चेंजेस हो रहे हैं. हमने इसको पहले भी कवर किया था. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अब अपग्रेड करेंगे. इसमें दो तीन मेजर चेंजेस हैं. वो क्या है? लेट्स सी. फर्स्ट इज जो 6 शेड्यूल थे उसकी जगह पे अब 4 हो जाएंगे. शेड्यूल 1 विल बी द स्पीशीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे कि टाइगर है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, यहाँ पे है. शेड्यूल 2 विल बी सब्जेक्ट टू लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे भी देयर विल बी फौना. शेड्यूल 3 कवर्स ओनली प्लांट्स ऑफ व्हाटएवर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. एंड इसके बाद जो बाकी के थे वो हटा दिए गए हैं और एक नया शेड्यूल 4 जो है वो इंसर्ट किया गया है. दैट इज बेसिकली द साइट्स अपेंडिक्स. उसको यहाँ पे लाया गया. ठीक है, क्योंकि इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही जगह दे दी. अभी इसके अलावा जो चेंजेस हैं वो क्या है? फर्स्ट, लाइक आई सेड, so CITES, which is an international agreement, this is what we are trying to implement in India. Then the invasive alien species, इनको लेके it empowers the central government to regulate or prohibit import, trade, profession, anything with respect to invasive alien species. तो इसको लेके अथॉरिटी क्लियर की गई है. ठीक है, पहले ज्यादातर जो ये अथॉरिटीज थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. कंट्रोल ऑफ सैंक्चुरीज, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, जो कि स्टेट के अंदर रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल, मैनेज या मेंटेन करने के लिए सैंक्चुरीज को, और इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी. लेकिन अब इसमें एक चेंज किया गया है. वो क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनेजमेंट प्लान्स आएंगे जिनके हिसाब से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो काम करेगा. ठीक है, गाइडलाइन सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगी, चाहे उसको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है. देन कंजर्वेशन रिजर्व, so state governments may declare area adjacent to national park and sanctuaries as conservation reserve for protecting flora and fauna. Now the bill empowers the central government also to notify any place as a conservation reserve. पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती थी, अब सेंटर भी करेगी. एक तरह से इट्स लाइक अ टेक ओवर. ठीक है, पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ी पावर्स दी गई थी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट उन पावर्स को अपने पास भी ले रहा है. कहीं कहीं पे पैरेलल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहा है. ठीक है, सो फाइन बढ़ा दिया गया. जनरल वायलेशन के लिए अब 1 लाख फाइन है, पहले 25,000 था. स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल के लिए पहले 10,000 फाइन था, अब 25,000 का फाइन है. लेकिन ये फाइन बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वॉल्व्ड इन समटाइम्स इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स. न्यू एडिशन टू द रामसर साइट्स. सो अभी क्या है ना कि यहाँ पे जो 14 साइट्स वाला है वो नया है और ये 10 साइट्स वाला पुराना है. दोनों ही करंट अफेयर्स यहाँ पे हैं बाय डिफॉल्ट, बिकॉज दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच गेट्स अपडेटेड एवरी टाइम. तो आप 14 वाला पढ़िए, इसको यू कैन लेट गो. ठीक है, सेम थिंग हियर ऑल्सो. देन स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट टारगेट्स 2030. तो इंडिया ने अपने टारगेट्स रिवाइज किए ना, उसी को लेके ये एक अलग तरह से न्यूज आइटम है. चीजें सेम है. नेक्स्ट इज फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन. What is that? Let's see. The government of India has established a Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homeopathy as a subordinate office under Ministry of Ayush. थोड़ा सा सिस्टमैटिक करने की कोशिश कर रहे हैं हम आयुष के आर्किटेक्चर को at the government level. So government has merged the Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine and Homeopathy and the two central laboratories, namely Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine and Homeopathic Pharmacopoeia Laboratory, HPL. What is the need? What do we need to know about this? So this particular PCIM&H institution will be acting as an autonomous body under the Ministry of Ayush, and it has been established although since 2010, but अब इसका merger हो रहा है अलग-अलग bodies का. Pharmacopoeia essentially है क्या? It is an officially recognized book of standards as per Drugs and Cosmetic Acts and Rules 1940, 1945. और इनके अधीन सारे किस तरह के स्टैंडर्ड ड्रग फॉर्मुलेशन है, किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, मार्केट कैसे कर सकते हैं, साइज ऑफ बॉटल क्या होगा, यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वो सब चीजें इसमें गिवन है. ठीक है, फंक्शंस. द कमीशन इज एनविसेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स फॉर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक ड्रग्स. So this will also act as a central drug testing cum appellate laboratory for Indian system of medicine and homeopathy.
ताकि इनकी अभी ना बेसिकली आयुष सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज द बिगेस्ट ट्रबल इन आयुष. वी डोंट हैव नो लाइक फॉर एग्जांपल इन होम्योपैथी की बुखार है तो ये वाली मेडिसिन ले लो, ऐसा नहीं है. ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि होम्योपैथी का नेचर डिफरेंट है, द वे इट वर्क्स. आयुर्वेदा के अंदर टू एन एक्सटेंट है कि चलो ठीक है तुलसी ले लीजिए या ऐसा कुछ चीजें हैं, बट इन हाँ और भी हैं. अब कईयों के दिमाग में पतंजलि की वीडियोस याद हो रही होंगी, वो अलग बात है. बट माय कंसर्न इज स्टैंडर्डाइजेशन. तो वो अब हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली किसी भी चीज को अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं दिया जाएगा तो फिर रिकग्निशन में भी कमी रहता है, उसको लोग जल्दी अडॉप्ट भी नहीं करते. तो वो स्टैंडर्डाइजेशन हम बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. बेनिफिट क्या है? ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेस, मैन पावर अलग अलग रिपोर्टरीज में थी, अब ढंग से यूज होगा. सो देर इज ऑल्सो अनदर बोर्ड दैट्स कॉल्ड ASUDTAB, that is Ayurveda Siddha Unani Drug Technical Advisory Board. So this is a statutory body under Drugs and Cosmetic Act 1940, which advises the center and state governments in regulatory matters of the accelerated shelf life testing drugs. आमतौर पे ये है क्या? ASLT. It's an indirect method of measuring and estimating the stability of a product. कितनी देर तक किसी चीज को रखा जा सकता है. I'll tell you, होम्योपैथिक मेडिसिन का पहले एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता था. ठीक है. फिर लेटली गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस जारी किया कि भाई इनके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन करना जरूरी है, कि इनका शेल्फ लाइफ इतना है, इसके बाद इसकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है. हम ये नहीं कहते कि एक्सपायर हो जाते, तो यूज बिफोर काइंड ऑफ थिंग. बट एज पर द डॉक्टर्स दे नो कि होम्योपैथी ड्रग्स की एक्चुअली कोई खास एक्सपायरी डेट का टेंशन है नहीं, क्योंकि वो अल्कोहल के अंदर तो है और मेडिसिन है पार्ट्स पर मिलियन में. ठीक है. ओके. So how is the government supporting the Ayush products or drugs? First is the Drugs and Cosmetic Act, जो इसको regulate control करता है. Then Certificate of Ayush Products, which is issued by Ministry of Ayush. Okay. Then Ayush औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना. So there is a central sector scheme. Okay. कोशिश क्या है? इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर हेल्थ प्रमोशन, इसको बढ़ावा दिया जाए अंडर आत्मनिर्भर भारत. च्यवनप्राश तो हर कोई खाता ही है ना, उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन आ गया, इसी तरह से बाकी चीजों के लिए भी आ जाए. नेक्स्ट वन, अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन इंडिया. ये साइंस एंड टेक में पढ़ना चाहिए, लेकिन खैर अभी न्यूज में आ गया है तो देखते हैं. So African swine fever has been confirmed for the first time at a private pig farm in Kerala, with more than 15 pigs on farm had died due to this particular disease. So that is African swine fever. आमतौर पे origin आजकल कहाँ हो रहा है नई नई बीमारियों का? चाइनीज मार्केट्स में, वेट मार्केट्स के अंदर. सो अब इसको लेके क्वेश्चन क्या आया था? H1N1 वायरस समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज, इट्स रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. सो स्वाइन फ्लू के साथ रिलेटेड है. ऐसे ऐसी H5N1 था, दैट वाज बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू. ओके. नेक्स्ट, मोनार्क बटरफ्लाइज. बचपन में आपने ये देखी हुई है, अभी भी आप इनको आराम से पहचान सकते हो कहीं पे भी. वेरी कॉमन टू इंडिया. Now, recently, migratory monarch butterflies have been declared endangered by the IUCN Red List of Threatened Species. That's the reason why it is in news, and that's why it can come in prelims. Okay? इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है. आपको क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में बड़ा सिंपल सा आएगा, और प्रीलिम्स के लिए ही ज्यादा कंसर्न है कि इसका स्टेटस क्या है. सो इट इज अ थ्रेटेंड स्पीशी, इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ गया है. बस इतना याद रखना है मेनली. तो ठीक है. अच्छा, it is the most recognizable butterfly species that are essential pollinators and further provides various ecosystem services such as maintaining the global food web. ये दो काम इसके हैं. Okay. Now their population is declined by 23 to 72% in the last decade. कारण क्या है? They follow unique lifestyle as they breed in only one particular plant, that is the milkweeds. But the removal of this plant by the farmers led to the decrease in population. Weedicides हम यूज कर रहे हैं आजकल. Legal and illegal logging, deforestation, make space for agriculture and urban development, which causes habitat destruction. तो mainly इनकी population dwindle कर रही है habitat destruction से और milkweed हटाने से.
ठीक है. Then snow leopard, again in news. So recently, study conducted by the Zoological Survey of India under National Mission on Himalayan Studies highlighted relationship between the habitat uses of snow leopard, Siberian ibex, and blue sheep, aimed at examining how the predator used habitat in the presence or absence of its prey species and vice versa. So it was found that the likelihood of detecting snow leopard was increased if the place was utilized by its prey species ibex or blue sheep. ऑब्वियस है, जहाँ पे प्रे है उधर ही प्रेडेटर है, जहाँ खाना है उधर ही जाएगा ना, तो डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा. तो अब इसको लेके स्टडी करने की क्या जरूरत थी मुझे नहीं मालूम, बट चलो ये स्टडी है. हमारा कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि ये न्यूज में है स्नो लेपर्ड, ठीक है. और न्यूज में होने की वजह से, जैसे कि पहले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन इंडिया, तो स्नो लेपर्ड उसमें था. उस तरह से आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करना है बस, ठीक है. As far as its status is concerned, it is vulnerable. It's in Appendix 1 for CITES and it's under the most protected category in Wildlife Protection Act also. Okay. Habitat कहाँ पे है? Mountainous landscape in Central Asia. इंडिया में कहाँ पाया जाता है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम. इंडिया में इसको लेके इनिशिएटिव क्या चल रहे हैं? So the government of India has identified snow leopard as a flagship species on high altitude Himalayas. This is one. Second, we are a party to Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program since 2013. Two, then Himal Sanrakshak. So this is a community of volunteer program to protect snow leopards, which was launched in October 2020. ये latest है, तो ये prelims में आ सकता है आपके. अभी तक पूछा नहीं यूपीएससी में हिमाल संरक्षक है क्या. Then in 2019, first national protocol was launched on snow leopard population assessment. तो इनकी पॉपुलेशन हमने बहुत ज्यादा स्टडी पहले नहीं की, अब कर रहे हैं. सो समथिंग टू बी कंसर्न विद. देन सिक्योर हिमालय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, यूएनडीपी फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर फिर से हम नेचुरल इकोसिस्टम को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे स्नो लेपर्ड थ्राइव कर सके. देन देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2009 फॉर देयर इंक्लूसिव कंजर्वेशन. Snow leopard is one of the list of 21 critically endangered species for the recovery program with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And snow leopard conservation breeding program is being right now undertaken at Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, West Bengal. तो अब ये zoological park किस वजह से significant है, ये अपने आप में prelims का अलग क्वेश्चन, ठीक है. तो इन फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है. हैबिटेट एंड इंडियन इनिशिएटिव्स प्रीलिम्स के लिए बड़े अच्छे से पेपर इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. सो दैट्स दैट फॉर टुडे. विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस in our next lecture. If you have any doubts or concerns, please do ask. Thank you so much. Have a good day.